Today we'll be starting a new chapter. The name of the chapter is Fundamental Rights. In the previous class we finished the first chapter, that was the Indian Constitution or Constitution of India. Today's part or today's class will be based on one particular topic, and that is not today but this chapter entirely will be based on one particular topic, and that is fundamental rights. Why this chapter is important? See, in the first class I told you that you must know your rights so that you are able to tackle any kind of situation in your life. Today everything is rotating or revolving around your parents, but a point will come when you have to take charge. At that point you must know your rights, you must know what you can do, you must know your powers. If you do not know that, then living in this society will become very very difficult. So what all are rights? What does right actually mean, especially when we are talking about fundamental rights? What are fundamental rights? Fundamental rights, according to many different scholars, it has different kind of meanings, but generally it is said that it is a right. A fundamental right is one which finds its sanction in the constitutional provision of a country. It is protected by the higher law of land. The fundamental rights have a secured place in the basic law of the land. It puts restriction on unreasonable power of the state. ये लाइन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लास्ट वाला. What it does is it puts restriction on the unreasonable power of the state. Can you tell me what is the meaning of unreasonable? Please type. What is the meaning of unreasonable power? इसका मतलब क्या है unreasonable? Waiting for answers. What is the meaning of unreasonable? I said it puts, it मतलब fundamental right puts restriction on the unreasonable powers of the government. Unreasonable मतलब हिंदी में भी बोल सकते हो, एसएमएस में भी बोल सकते हो, इंग्लिश में भी बोल सकते हो, बट you have to write unfair. Yes, not bad. Unfair is right. Unfair बोल सकते हो आप लोग. Who answered it? Ritu, I think. Yes. Unfair is correct. Unfair पावर जो होता है स्टेट्स का, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देता है. सुरुचिका मुस्कान, यू हैव टू स्पीक अप सिंस यू आर डूइंग ऑडियो क्लासेस लाइव. तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव होने से इट बिकम्स वेरी इजी, बिकॉज इवन आई कांट सी यू, यू कांट सी मी. मेरा बात तो आप लोग सुन रहे हो, मैं आपका बात नहीं सुन पा रहा. सो इट बिकम्स वेरी बोरिंग फॉर मी. सो इफ़ यू कीप ऑन मैसेजिंग दैट सर ये क्या है, वो क्या है, या फिर ये समझ नहीं आया, और इफ़ आई आस्क ए क्वेश्चन यू हैव टू आंसर, इफ यू डू दैट इट बिकम्स मच मोर ईजियर फॉर मी टू इंटरेक्ट, राइट? ऑलराइट. नाउ नेक्स्ट इज, इसका मतलब क्या है सिंपल सिंपल भाषा में तो माने कि when an ordinary legal right is protected and enforced by the ordinary law of the land, a fundamental right is one which is protected and granted by the written constitution of the state. सर कुछ समझ नहीं आया, ज़रूरत नहीं है ना, एक ही लाइन समझो, मैं जो बार बार बोल रहा हूँ. It puts restriction on the unreasonable power of the state. See, the country or the government has a lot of power. It can levy any kind of tax on you. It can impose any kind of law in the country at any point of time. So, what are your powers? Because this government is made by you, it's a democratic country, therefore, the entire power
is with them, but the who is the main source of their energy? We, the people. हमसे ही तो वोट लेके वो लोग बने, तो पावर किसके पास होना चाहिए? हमारे पास. Therefore this fundamental rights gives us the power to do certain things, gives us the power to ask for something, certain things, or demand for certain things. Moreover, it restricts the power of the government. अनरीजनेबल अनफेयर रूल्स लगाना, जो गलत है उस चीज़ को इम्पोज करना, वो सब करेगा, देन वी हैव द राइट टू स्टॉप देम. द फंडामेंटल राइट्स गिव्स अस द पावर टू स्टॉप देम, राइट. अनदर क्वेश्चन हियर कम्स, सर हु गिव्स अस दिस पावर? फंडामेंटल राइट जो हमारे पास है, कुछ भी राइट, बहुत सारे राइट्स है, क्या क्या हम लोग आगे पढ़ेंगे. हु गिव्स अस द पावर, कहाँ लिखा है? आई ऑलवेज से इन लॉ क्लासेस, कहाँ लिखा है? कहीं लिखा होना पड़ेगा. इट इज़ कन्फर्ड टू अस, हम लोग को ये दिया गया है. इट इज़ गारंटेड टू अस बाय whom? बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट. There are various kinds of right which relate to equality, liberty, non-exploitation, religion, education, culture, etc. etc. सर कुछ समझ नहीं आया, फिर से बता रहा हूँ. द राइट्स दैट आर गिवन टू यू आर रिलेटेड टू इक्वालिटी. जैसे राइट टू इक्वालिटी क्या है, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. इक्वालिटी, फिर लिबर्टी, लिबरली रहना, आराम से रहना. नॉन एक्सप्लॉइटेशन, ताकि आपको कोई एक्सप्लॉइट ना करे, आपसे ज़्यादा काम ना करवाए. रिलीजन, आपको रिलीजन प्रैक्टिस में देयर इज़ नो बार कि यू हैव टू प्रैक्टिस दिस रिलीजन ओनली. एजुकेशन, कल्चर, ये सब तो आप लोग को पता ही है. सो दीज काइंड्स ऑफ राइट्स आर देयर. व्हाट आर द स्पेसिफिक राइट्स, वील अंडरस्टैंड इट वन बाय वन लेटर. नाउ कम्स द क्वेश्चन कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स. मतलब फंडामेंटल राइट्स कैसा होना चाहिए और कैसा होता है. हाउ आर द फंडामेंटल राइट्स, उसका नेचर क्या है, फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फंडामेंटल राइट्स का. फर्स्ट फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट, आई होप फंडामेंटल राइट इज क्लियर. प्लीज़ लीव अ मैसेज. फंडामेंटल राइट क्लियर है कि और थोड़ा एक्सप्लेन करें? आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज. फंडामेंटल राइट का मीनिंग समझ में आ गया सबको? इज इट क्लियर होल फंडामेंटल राइट और मीनिंग? कारोबार की बात, डाउट की बात, प्रश्नों? If it is clear, please leave a message and then I'll move on to the next topic. Okay, clear. Okay, fine. Then we can move on to the next part. Next part is characteristics of fundamental rights. How are characteristics, the features, the nature, कैसा होता फंडामेंटल राइट्स? फर्स्ट, नंबर वन, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट. क्या होता है एब्सोल्यूट सर? है ना, एब्सोल्यूट क्या होता है? इसका मतलब आगे पढ़ के समझ में आएगा. आगे वाला लाइन पढ़ते हैं. दे आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन. मतलब फिर से रीजनेबल. ओके, और आगे देखते हैं. दे स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोशल सिक्योरिटी, बट द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. मतलब फंडामेंटल राइट्स तो आपको दिया जाता है, बट देर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शन. रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन मतलब पूरा रेस्ट्रिक्शन नहीं. अगर राइट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग गया, যদি আমার রাইটসের উপর রেস্ট্রিকশন লাগি যায়, তার মানে রাইটসের কি ভ্যালু থাকিব? अगर आपका जो हक है, हक के ऊपर अगर रेस्ट्रिक्शन लग जाता है, तो किस 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 टाइप का ये राइट हुआ? राइट तो पूरा छूट होना चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस काइंड ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इज गिवन. थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन. एग्जाम्पल के तौर पे
व्हाट इज़ द फेवरेट टाइम ऑफ योर्स इन स्कूल? जब स्कूल पे थे, क्लास 10 की बात छोड़ दो, 9 की बात छोड़ दो, इसके अलावा क्लास 1 to 8, विच टाइम ऑफ द ईयर इन स्कूल, वेकेशंस का बात नहीं कर रहे, इन स्कूल विच टाइम ऑफ द ईयर यू लव्ड, मतलब यू ऑलवेज वेटेड फॉर दैट टाइम टू अराइव? यस प्लीज़ बताओ, विच टाइम ऑफ द ईयर इन योर स्कूल लाइफ यू लव्ड और वेटेड फॉर इट टू कम? ओ, फंडामेंटल राइट्स के बारे में और थोड़ा जानना था रितु को। ओके फाइन, मैं थोड़ा समझा दूंगा इसको भी लास्ट टाइम पे। यस रितु, चैट विथ एवरीवन जो है ना, चैट विथ एवरीवन वाला वो यूज़ करो आप। नीचे जो चैट बॉक्स है ना, इनवाइट चैट और म्यूट ऑल, उसके अंदर जो चैट ऑप्शन है उसके अंदर चैट विथ ऑल है, वो वाला यूज़ करो। मैं उसके अंदर हूँ, तो इट विल बी ईजियर फॉर मी टू स्क्रॉल ना। हाँ फाइन, ओके। कौन सा ईयर है ज़रा बताओ? साल के अंदर जब पूरा वो स्टार्ट होता है, सेशन स्टार्ट होता है स्कूल, মানে স্কুল স্টার্টস যিকোনো সময়ত গোটেই বছৰটোত কোনটো সময় তোমালোকে বহুত ভাল পোৱা, মানে ৰৈ থাকা যে এই দিনটো আহিব? 8-9ৰ কথা কোৱা নাই মই, 9-10ৰ কথা কোৱা নাই, 1 to 8 समर वेकेशनो নহয়, ইয়াৰ বাহিৰে विच टाइम ऑफ द स्कूल यू लव्ड, मतलब यू ऑलवेज वेटेड, बता सकते हो? सबका अलग अलग हो सकता है। यस, लीव अ मैसेज क्विक। अरे भाई मेक इट इंटरैक्टिव, वैसे थोड़ा ना होता है। यस, विच टाइम ऑफ योर स्कूल सेशन यू लव्ड द मोस्ट? जनवरी से लेकर दिसंबर तक स्कूल चलता है, बीच में 2 बार वेकेशंस भी मिलता है, लेकिन इस वेकेशंस के अलावा कौन सा दिन या फिर कौन सा टाइम आपको बहुत ज़्यादा स्कूल में अच्छा लगता है? कौन सा महीना या फिर ऐसा कोई ओकेशन जो आपको बहुत पसंद हो, जिसके लिए आप पूरा साल वेट करता हो? यस, देयर इज़ अ लिंक बिटवीन दिस एंड द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, जो कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आई हैव टू लीव द क्लास नाउ। ऐसे नहीं होता है क्लास। देन व्हाई एम आई टेकिंग लाइव क्लासेस एंड देन अपलोडिंग इट ऑन यूट्यूब? सिंपल आप लोगों को नोट्स दे देने से बन जाता है। स्पोर्ट्स डे एंड टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, वेरी गुड। मेरा तो स्पोर्ट्स डे था भैया, बाकी लोगों का उंगली में दर्द है शायद, है ना? बाकी दोनों का, कौर जी का भी दर्द है, शर्मा मैडम जी का भी दर्द है उंगली में, लिख नहीं पा रहे बेचारे। कोई बात नहीं। अच्छा, अभी स्पोर्ट्स डे बड़ी जोर आ रहा है। अच्छा, सबका स्पोर्ट्स डे, मेरा भी स्पोर्ट्स डे। आई तो लव्ड स्पोर्ट्स डे, मतलब पूरा साल वेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मस्ती मारो, टिफ़िन लेके जाओ, घर से कोई रोटी बना के लेके जाएगा, चाउमीन बना के लेके जाएगा, फील्ड में जाके खाएंगे, है ना? लव्ड इट। अच्छा, क्यों मैंने बताई ये बात? देखो, स्पोर्ट्स डे में आप लोग जब जाते हो, वेन एवर यू गो फॉर द स्पोर्ट्स वीक कम, है ना, स्पोर्ट्स वीक रहता है ना, तो वी यूज टू वेयर वाइट यूनिफॉर्म और आवर रेड हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस, वट एवर यूनिफॉर्म, रिमेंबर? वो ड्रेस पहन के वी गो टू द फील्ड, वी प्ले बास्केटबॉल, बैडमिंटन, दिस एंड दैट, एकदम केयर फ्री। द बिगेस्ट थिंग वॉज देयर वॉज नो अटेंडेंस, एकदम बिंदास जाओ, नो वन टू स्टॉप अस, नो क्लासेस, राइट? But there are certain rules and regulations to be followed, if I am not wrong. Yes or no? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, पूरा दिन फ्री है, मतलब कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको, आपको पता है, नो वन विल से एनीथिंग। इवन इफ़ यू वेयर द रॉन्ग काइंड ऑफ सॉक्स, नो वन इज गोइंग टू टेल यू एनीथिंग। यू कैन से कि मेरा गेम है इसलिए आई एम डूइंग दिस, बट देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड। येस और नो? यू हैव टू रीच द स्कूल ऑन टाइम। स्पोर्ट्स डे है बोल के यू कैनॉट रीच एट 10 or 11। द स्कूल holiday bell will ring at 2:15 or 2:30, राइट? लास्ट बेल जो जाता है स्कूल का, छुट्टी वाला, क्या उसमें कोई चेंज होता है क्या? नो। दीज आर कॉल्ड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। केयर फ्री लाइफ,
फुल मस्ती बट स्टिल सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। क्या उस रिस्ट्रिक्शन से हम लोग को कोई दिक्कत था क्या? Were we complaining? Did we complain about those restrictions? No, because those restrictions did not harm our freedom. Did it harm your freedom anyway? No. We can go to the field at any point of time. We can come back from the field at any point of time. You can participate in any kind of games. But you have to reach the school on time. You have to leave the school on time. You have to be in your uniform, or in your sports days you cannot come in jeans or t-shirt, right? You have to come in your either your school uniform, white dress, or the colorful dress that we have, or you can bring wear your sports uniform or sports wear, whatever you have at home, right? But you cannot wear jeans and all, right? Leather shoes, jeans, this is not allowed. So there are reasonable restrictions which are good for us. इसी को बोला जाता है कि fundamental rights are not absolute. These rights are also same. They give us freedom of this and that, but they are not what? They are not absolute. Absolute मतलब पूरी तरह से absolutely free. Why they are not absolute? In order to make some control, have some control, certain restrictions are given. समझ में आया? Clear? Why fundamental rights are not absolute? Is it clear? All right. Yes. Be quick to answer. Good. Then comes next, number 2. All fundamental rights can be suspended except fundamental rights granted in article number 20 and article number 21. ये थोड़ा सस्पेंस में रखते हैं, ठीक है ना? We have a lot of rights. बहुत सारा राइट है अपने पास, बहुत सारा राइट है. राइट टू दिस, राइट टू दैट, बट देर आर फ्यू राइट्स विच कैनॉट बी सस्पेंडेड. सर सस्पेंड मतलब देखो ऐसा है, इफ़ देर इज़ इमरजेंसी इन द कंट्री, देश में जब इमरजेंसी का टाइम आता है, आपातकालीन टाइम आता है, एट दैट पॉइंट यू कैनॉट एन्जॉय योर फंडामेंटल राइट्स. ऑल राइट्स आर सस्पेंडेड. आपका ये राइट है, वो राइट है, दीज राइट्स, ऑल द राइट्स आर सस्पेंडेड. तब आप नहीं बोल सकते हो कि ये मेरा हक है. तब कुछ हक नाम का चीज़ नहीं होता है. कब होता है वो? ओनली व्हेन इमरजेंसी इज़ डिक्लेयर्ड इन द कंट्री. रेड अलर्ट जारी कर दिया जाता है पूरा देश में, मे बी कोई टेररिस्ट अटैक हो गया हो पूरा देश में, या फिर ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम आ गया हो. एट दैट पॉइंट व्हेन इमरजेंसी इज़ डिक्लेयर्ड, दीज राइट्स बिकम यूजलेस. इन राइट्स का कोई मतलब ही नहीं होता. तब ये लीगल राइट्स नहीं रहता, इसको सस्पेंड कर दिया जाता है जब तक इमरजेंसी ना हटे. लेकिन इन राइट में से भी 2 राइट ऐसा है जिसको इवन इमरजेंसी के टाइम पे भी आप सस्पेंड नहीं कर सकते. कौन सा राइट? ये सस्पेंस में रहेगा. आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 में जो 2 राइट्स दिए गए हैं, आर्टिकल नंबर 20 एंड आर्टिकल नंबर 21, ठीक है? ये 20 और 19 के अंदर जो भी राइट्स है ये आप सस्पेंड नहीं कर सकते. दीज राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड. फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल नंबर 19 में दिया गया है राइट टू फ्रीडम. हम लोग फ्री लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, बट यू कैनॉट डू दैट ड्यूरिंग इमरजेंसी. इमरजेंसी के अंदर आपका कोई फ्रीडम नहीं रहता है. जैसा गवर्नमेंट बोलता है वैसा करना पड़ेगा. हाउएवर आर्टिकल 20 याद रखना, आर्टिकल 20 और 21, 19 में फ्रीडम के बारे में लिखा है. 20 और 21 में क्या लिखा है ये आप लोग मुझे बताना, अभी नहीं बताना, क्लास खत्म होने के बाद. यही आज का क्वेश्चन है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये हम लोग को कौन सा फंडामेंटल राइट देता है. विच फंडामेंटल राइट्स आर ग्रांटेड बाय आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21. फाइन. तो एज ए होल ऐसा है कि आर्टिकल 20-21 का राइट, अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, यू कैनॉट बी सस्पेंडेड. ये हटाया नहीं जा सकता, ये हमारा एकदम हक है, ये हक रहेगा. क्लियर? ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है. थर्ड, सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर सिटीजन्स ओनली. अदर राइट्स कैन बी एंजॉयड बाय बोथ सिटीजन एंड एलियंस. एलियन मतलब जादू वाला एलियन नहीं जो कोई मिल गया में आया है, ये एलियन दूसरा है. ये एलियन मतलब फॉरेनर की बात कर रहे हैं हम लोग. तो फंडामेंटल राइट्स आर सच दैट फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर, सर्टेन फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर सिटीजन ओनली. कुछ फंडामेंटल राइट्स है वो सिर्फ सिटीजन लोग को ही मिलता है, देश के जो नागरिक हैं उनको ही वो मिलता है. हाउएवर कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे भी होते हैं जो सिटीजन्स को भी मिलते हैं और फॉरेनर्स को भी मिलते हैं. यानी कि भारत के जो नागरिक हैं उनको भी मिलेगा, जो नागरिक नहीं है उनको भी मिलेगा.
जैसे राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, जो मर्जी प्रैक्टिस करो रिलीजन, कौन रोक रहा है आपको? ये कोई सिटीजन के लिए भी जितना एप्लीकेबल है, फॉरेनर के लिए भी उतना एप्लीकेबल है। हाउएवर कुछ कुछ राइट्स वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ सिटीजन्स के लिए। कौन सा राइट है, क्या है, ये सब ध्यान में रखना, मैं जो बता रहा हूँ। Please keep this in mind that certain rights are meant for citizens only, other rights can be enjoyed by citizens as well as foreigners also, जिसको हम लोग aliens कहते हैं। तो which rights can be enjoyed by citizen only? This is a discussion or topic of discussion of a separate class. The fundamental rights can be amended but they cannot be abrogated. The abrogation of fundamental rights will violate the basic structure of the constitution. मैं अभी क्लास 12 में भी पढ़ा रहा था, ये क्या है मैं बताऊंगा। इंदिरा गांधी ने एक बार क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था इंदिरा गांधी के। इंदिरा गांधी ट्राइड टू एब्रोगेट सर्टेन फंडामेंटल राइट, इवन कुछ कर भी दिया था। एक तो फंडामेंटल राइट एब्रोगेट कर ही दिया था, एंड दैट वाज राइट टू प्रॉपर्टी। आज के दिन में अगर राइट टू प्रॉपर्टी होता तो ईच एंड एवरी इंडियन सिटीजन वुड हैव गॉट अ प्रॉपर्टी, सबके पास प्रॉपर्टी हो गई, ये हमारा हक है। अब ये राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है, बट दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको लेकर बहुत झगड़ा भी हुआ था बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड इंदिरा गांधी, एंड फाइनली फीलिंग अनसिक्योर, इंदिरा गांधी हरसेल्फ फीलिंग अनसिक्योर, शी डिक्लेयर्ड इमरजेंसी इन द कंट्री, सस्पेंडिंग ऑल फंडामेंटल राइट्स। तो ये आप लोगों को सेकेंड ईयर में मिलेगा, याद रखना ये सब बात। तो पॉइंट हियर इज फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड। मैंने बताया था ना अमेंडमेंट का मतलब क्या है, जरा याद करो तो बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमेंडमेंट? अमेंड का मतलब क्या होता है? यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमेंडमेंट? याद है एनीवन? फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमेंड या फिर अमेंडमेंट? चेंज, वेरी गुड। अमेंडमेंट का मतलब चेंज, यानी कि द फंडामेंटल राइट्स कैन बी चेंज्ड, फंडामेंटल राइट्स कैन बी चेंज्ड बट कैन नॉट बी एब्रोगेटेड, हटा नहीं सकता है, आप उसको बदल सकता है। बदल मतलब हल्का फुल्का चेंज कर सकता है, चेंज मतलब पूरी तरह से बदल देना नहीं, मॉडिफिकेशन करना। अमेंडमेंट का सही मतलब होता है मॉडिफिकेशन करना, ठीक है ना? सही मतलब होता क्या है? मॉडिफिकेशन करना। आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हो पर आप उसको हटा नहीं सकते। बात समझ में आ रही है? फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बट दे कैन नॉट बी abrogated. You cannot remove the fundamental right but you can do modification. If you try to remove it then it is against the constitution. ये असंवैधानिक है, इसके लिए ये अलाउ नहीं किया करता हमारा संविधान हमको। तो these are the 4 characteristics of fundamental rights. There are others also. There are 9 characteristics. We'll continue in the next class. In case you have any doubts you can ask me in the next class. We'll continue our class in the next tomorrow, maybe same time 4:30. So please be online, keep checking your WhatsApp group for the timings. I hope you like the class. Do leave a feedback. Thank you. पूरा तो ये करबे, थैंक यू बोले काटे ना।